حیا اور پاکدامنی آڈیو بک حصہ 17 باب 4 ملی جلی محفلوں سے بچنا۔ مرد کی فطرت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فریبتہ کیا لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے جیسے عورتیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مرد کے نفس میں سب سے زیادہ شدید طلب عورت کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنے میں رکھی گئی ہے۔ اس کی تصدیق نبی علیہ السلام کی حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ فرمایا، میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ عورت کا فتنہ ساری چیزوں سے زیادہ خطرناک اور سخت ترین ہے۔ اس لیے شیطان کا قول ہے کہ عورت میرا وہ تیر ہے جو کبھی خطا نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ جس طرح رسی کے ذریعے شکاری اپنے شکار کو پھنسا لیتا ہے، اسی طرح شیطان عورت کے ذریعے مرد کو گناہ میں پھنسا لیتا ہے۔ چند اہم نکتے نیچے اس طرح ہے۔ مرد کو موقع نہ دے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ غیر مردوں سے دور رہے۔ اگر کسی مرد پر اعتماد کرے تو یقینی طور پر دھوکہ کھائیں گی۔ اکثر مرد اس لیے گناہ نہیں کرتے کہ انہیں موقع میسر نہیں ہوتا۔ اگر کسی عورت پر قدرت ملے اور وہ گناہ نہ کرے تو یا وہ ولی ہوگا یا پھر بے عقل ہوگا۔ عام آدمی شہوت کے جوش میں آ کر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ آج کے دور میں جوان بہن کو بھائی پر اعتماد کر کے تنہائی میں اکیلے پاس نہیں رہنا چاہیے، شیطان فتنے میں مبتلا کر دے گا۔ عورت مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ عورت کے معاملے میں مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اس کی امنگیں اور آرزوئیں ہمیشہ جوانوں کی طرح رہتی ہے۔ جب کسی نوجوان لڑکے کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو محفل میں موجود اس کے باپ اور دادا دونوں کے دل میں بھی حسرت بھری کیفیت ہوتی ہے کہ کاش یہ ہمارے نکاح کی مجلس ہوتی۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی عمر 100 سال سے پار کر گئی تھی۔ ایک دن عورتیں آپس میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ ان کی عمر تو 100 سال سے زیادہ ہو گئی، ان سے پردہ نہ بھی کیا جائے تو ٹھیک ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی باتیں سن کر انہیں بتایا کہ ابھی تھوڑا سا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک دن مجھے ان کے ساتھ کسی جگہ قیام کرنے کا موقع ملا۔ صبح اٹھ کر انہوں نے خادم سے کہا کہ رات کو احتلام ہو گیا، غسل کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ یہ سن کر عورتیں ایسے ہی چپ ہو گئی جیسے انہیں کسی سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ دل نہیں بھرتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ چند چیزوں سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ مثلاً نمبر 1، آسمان دیکھنے سے۔ ہر آدمی روزانہ آسمان کو دیکھتا ہے، نیلا رنگ، بادل، سورج، چاند اور ستارے وغیرہ، مگر کوئی آدمی ایسا نہ ملے گا جو یہ کہے کہ آسمان دیکھ کر میرا دل بھر گیا ہے، میں اکتا چکا ہوں۔ ہر روز نئے شوق کے ساتھ انسان آسمان کے ستاروں کو دیکھتا ہے۔ نمبر 2، ہر آدمی روزانہ پانی پیتا ہے، مگر اس کے باوجود اس سے کبھی طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ ایک دن جتنا بھی پیٹ بھر کر پانی پی لے، دوسرے دن پھر پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی کی طلب پیدا ہوگی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بنائے ہوئے شربت پینے سے طبیعت اکتا جائے، مگر پانی پینے سے طبیعت نہیں اکتا سکتی۔ نمبر 3، بیت اللہ دیکھنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو دیکھنے میں ایسی لذت رکھ دی ہے کہ آدمی ایک دفعہ دیکھے تو دوبارہ دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ ایک بار دیکھا ہے، بار بار دیکھنے کی طلب ہے۔ بقول شاعر، اے محبوب جتنا زیادہ میں تمہاری طرف دیکھتا ہوں اتنا ہی زیادہ میری محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، مرد کا دل عورت سے۔ یہ بھی کھلی حقیقت ہے کہ مرد کا دل عورت سے کبھی سیراب نہیں ہوتا۔ اگر وقتی طور پر ضرورت پوری ہونے کی وجہ سے
कशिश महसूस न हो, लेकिन 2-4 दिन के बाद तबीयत के अंदर मेल मिलाप की ख्वाहिश पैदा होंगी और इंसान को मिले बगैर चैन की नींद नहीं आएंगी। अगरचे इंसान जवानी से बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए, मगर औरत की कशिश में कमी नहीं आती। शायद भूख प्यास नींद की तरह शैवानी ज़रूरत भी इंसान की फितरत का हिस्सा है, जो मौत तक उसके साथ ही रहती है। हड़ताल फ़कत जांच पड़ताल। एक अमीर आदमी ने पूरी ज़िंदगी अय्याशी में गुजार दी। बुढ़ापे की उम्र में पहुंचकर वह जिनसी तौर पर औरत के काबिल न रहा, मगर इसके बावजूद पेशेवर औरतों को भारी रकम के एवज़ अपने पास बुलाता और लिपटा चिमटा कर उन्हें वापस भेज देता। एक औरत ने उससे पूछा कि जब तुम औरत के साथ हमबिस्तरी के काबिल नहीं रहे, तो इतने पैसे खर्च करके तुम्हें आखिर क्या मिलता है? उसने जवाब दिया कि चाहे मैं नाकाबिल हूँ, मगर औरत को नंगी हालत में देखकर उसके आज़ा को हाथ लगाकर और लिपटकर मेरी शहवत पूरी हो जाती है। मेरे जिस्म में बुढ़ापे की वजह से हड़ताल है, बस मैं जनाने आज़ा की जांच पड़ताल करके वक्त गुजार लेता हूँ। सुना है कि एक शायर को खाने पीने की बहुत हवस थी। वह दस्तरखान पर खाना खाते खाते थक जाता। जब बीवी दस्तरखान समेटने के लिए आती तो कहता, गो हाथ में जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है, रहे दो अभी सागर ओ मीना मेरे आगे। ये शेर उस अय्याश अमीर की हालत की सही तर्जुमानी करता है। बकरे बकरी का खेल। अल्लामा दमीरी ने हयातुल हैवान में लिखा है कि एक बूढ़े आदमी ने बकरियां और बकरे पाले हुए थे। वो रोज़ाना बैठकर घंटों बकरे और बकरियों को देखता रहता। किसी ने पूछा कि तुम अपना वक्त क्यों ज़ाया करते हो? उसने जवाब दिया कि मैं ख़ुद तो बुढ़ापे की वजह से बीवी के काबिल नहीं रहा, लिहाजा मैं बकरे बकरियों को देखता रहता हूँ। जब कोई बकरा शहवत के साथ बकरी पर सवारी करता है तो मुझे अपनी जवानी याद आ जाती है। बोसीदा हड्डियों में कशिश। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि अगर किसी जगह 2 बोसीदा हड्डियाँ करीब रख दी जाए तो वह भी आपस में जुड़ने की कोशिश करेंगी। किसी ने वजाहत पूछी तो फरमाया कि अगर किसी बूढ़े और बूढ़िया को इकट्ठे रहने का मौका मिल जाए तो वह भी एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाएंगे। हज़रत सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का कौल। उलमा और सुलहा के इमाम हज़रत ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी मर्द और औरत की आपसी कशिश का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि मर्द के अंदर औरत की शहवत इस कदर रख दी गई है कि अगर औरत किसी रास्ते से गुज़रे और उसके कदमों के निशान ज़मीन पर रह जाए, फिर बाद में किसी मर्द को उसी रास्ते से गुज़रना पड़े और उसके पाँव औरत के पाँव के निशान पर पड़ जाए, तो भी मर्द के अंदर शहवत बेदार हो जाती है। खुलासा। ऊपर लिखे हक़ाइक़ से ये बात खुलकर सामने आती है कि औरत के मामले में मर्द की हवस कभी पूरी नहीं होती। शादीशुदा मर्दों में औरत का तज़किरा छिड़ जाए तो हर एक नई शादी करने के लिए तैयार नज़र आता है। एक प्रोफेसर साहब घर में बैठे नावल पढ़ रहे थे। उनकी बीवी बन संवर कर उनके करीब मौजूद थी और खाविंद के नज़रे इनायत चाहती थी। प्रोफेसर साहब उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। लंबे इंतज़ार के बाद औरत ने करीब आकर कहा कि काश मैं भी किताब होती ताकि आप घंटों देखते रहते। प्रोफेसर साहब बोले, कितना अच्छा होता आप डायरी होती कि मैं उसे हर साल बदल सकता। इससे वाज़े होता है कि मर्द कुंवारा हो या शादीशुदा हो, उसे गैर महरम औरत के करीब होने का मौका ही नहीं दिया जाना चाहिए। एक नौजवान रेल में सफ़र पर जाने के लिए स्टेशन पर पहुंचा। इंतज़ार गाह में
एक पर्दा नशीन औरत भी रेलगाड़ी के इंतज़ार में बैठी थी। किसी वजह से इत्तला मिली कि गाड़ी 2 घंटे लेट है। नौजवान ने सोचा, चलो इस औरत से ही बातचीत बढ़ाते हैं। उसने पहले पूछा कि आप भी गाड़ी पर जाने के लिए यहाँ बैठी है? औरत ने कहा, हाँ। मैं सर हिला दिया। नौजवान की हिम्मत बढ़ी कि वक्त भी तन्हाई का है और औरत बात का जवाब भी दे रही है, ज़रा और बात बढ़ाई जाए। उसने दोबारा पूछा कि मैं आपके लिए कोई शरबत या ठंडी बोतल ले आऊँ? औरत ने पहले तो इनकार किया, मगर बार बार इसरार पर हाँ कर दी। नौजवान भागकर ठंडी बोतल ले आया। औरत ने पीकर एक तरफ रख दी। कुछ देर बाद नौजवान ने पूछा कि आपके लिए कुछ और खाने की चीज़ ले आऊँ? औरत ने सर के इशारे से इनकार कर दिया। नौजवान बार बार पूछता रहा, इधर से इसरार और उधर से इनकार। इसी तरह काफ़ी देर गुजर गई। आखिर नौजवान को दूर रेडी वाला फल बेचने वाला नज़र आया तो उसने बड़े मस्त अंदाज से पूछा, क्या मैं आपके लिए सेब ले आऊँ? औरत ने सर हिलाकर इनकार किया। नौजवान ने बड़ी मोहब्बत भरी आवाज़ में कहा, क्या बात है, आप मेरी कोई चीज़ कबूल नहीं कर रही? औरत चुप रही। जब नौजवान ने मिन्नत समाजत की हद कर दी कि आप आखिर फल क्यों नहीं खाना चाहती, तो औरत ने तंग आकर कहा कि मेरे मुंह में दांत नहीं, मैं 80 साल की बुढ़िया हूँ। नौजवान शर्मिंदा हुआ और वहाँ से खिसक गया। एक तरफ तो औरत के मामले में मर्दों का इतना पतला हाल है, दूसरी तरफ किसी औरत की नीयत में फतूर आ जाए तो मकर व फरेब की वजह से वह खाविंद के नाक के नीचे दिया जलाकर दिखा देती है। इसलिए शरय शरीफ ने मर्द और औरत के आज़ादाना मिलने जुलने पर कतई पाबंदी लगा दी है। न तो शैतान को गुनाह करवाने का मौका मिले, न ही इज्जतों के जनाजे निकले और न ही माशरे में फसाद फैलने की सूरत रही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।